بھائی زبردستی تم بھائی بن جاؤ، بھائی کا حقوق ادا نہ کرو تو پھر بھائی بننے سے بیکار ہے۔ تو جتنے رشتے تمہارے ساتھ جڑتے ہیں سب کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو اب اتنے سارے حقوق کیسے ادا ہو گئے؟ آپ تعجب کریں گے، مولانا اتنا سارا حقوق ہم تو نہیں ادا کر سکتے۔ ہم نے کہا میں نسخہ بتا دیتا ہوں، بالکل آسان، علامہ عظیم الدین صاحب سے پوچھ لیں، بالکل آسان نسخہ۔ میں نے کہا سارے حقوق اگر ادا کرنا ہے، ایک صحیح بھائی بھی بننا چاہتے ہو، صحیح شوہر بھی بننا چاہتے ہو، صحیح ماموں چاچا نانا خالو پھوپھا سب کچھ اگر صحیح معنوں میں بننا چاہتے ہو اور سب کے حقوق برابر ادا کرنا چاہتے ہو تو ان سب سے پہلے سچے مسلمان بن جاؤ، سارے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو سچا مسلمان ہوگا وہ سچا بھائی بھی ہوگا، وہ سچا شوہر بھی ہوگا، وہ سچا خالو پھوپھا نانا نانی سب کچھ ہوگا، سارے حقوق کی ادائیگی اسے آئے گی۔ کیونکہ صاحب یہ رشتے بعد میں آتے گئے، ایمان پہلے آتا گئے۔ رشتے تو بعد میں شروع ہوتے ہیں، ایمان پہلے عطا کیا جاتا ہے، اس لیے اسے مضبوط کر لو اور اس ایمان کو عمل سے طاقتور بنا لو تاکہ سارے رشتے ادا ہو جائیں۔ تو ایک صحیح باپ اسی وقت بن سکتا ہے جب پہلے سچا مسلمان بنے، تب وہ اولادوں کے حقوق ادا کرے گا۔ کیونکہ ماں باپ نے جیتے جی اگر اپنی اولادوں کو قرآن نہیں دیا، دین نہیں دیا، اسلام نہیں دیا تو انہوں نے دنیا میں انہیں کچھ نہیں دیا، انہیں بالکل انگوٹھا ٹیک کر دیا۔ اس لیے انہیں دنیا میں دینا ہے تو وہ نسخہ عطا کر دو، وہ نسخہ عطا کر دو جیسے کہ ان شہزادے کو عطا کیا گیا صاحب کہ ماں باپ مر کر دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ حافظ قرآن جہاں جہاں بھی ان کی زندگی جب تک رہے گی دنیا میں کہیں بھی صاحب کہیں بھی مصلی پر کھڑے ہو کر کے قرآن کا نغمہ سنائیں گے، ماں باپ کو نیکیاں وہیں سے پہنچتی رہے گی۔ اب یہ بچوں کو پڑھائیں گے قرآن، وہ نیکیاں ماں باپ کو پہنچے گی، مقتدیوں کو قرآن کا سبق دیں گے، وہ نیکیاں ماں باپ کو پہنچیں گی، منبر میں قرآن کا تب قرآن کی تبلیغ کریں گے، نیکیاں ماں باپ کو پہنچے گی۔ اور جو ہے یہ تراویح کے لیے مصلی پر کھڑے ہو کر کے صاحب 15 دن کہہ لیجئے 6666 آیتوں کی تلاوت کریں گے، وہ نیکیاں ان کے قبر میں پہنچے گی۔ یہ جہاں بھی نیکی کے لیے چلیں گے کیونکہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، یہ وہ صاحب بینیفٹ ہے، وہ فائدہ مند چیز ہے کہ تم دنیا سے چلے گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ بھی ہوگے کہ قبر میں پہنچیں گے تو جہنمی ہوگے لیکن اٹھیں گے تو جنتی ہوگے۔ سبحان اللہ، اٹھیں گے تو جنتی ہوگے۔ صحابہ نے عرض کی سرکار وہ کیسے جنتی ہوگے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ خود تو گناہ کر کے آئے ہوگے لیکن ساتھ میں نیک اولادیں بھی چھوڑ کے آئے ہوگے، حافظ قرآن چھوڑ کے آئے، حاجی نمازی چھوڑ کر کے آئے، عالم دین چھوڑ کر کے آئے، تو جب تک کہ ان کی اولادیں دنیا میں رہے گی وہ رب کے حضور مانگ مانگ کر اپنے ماں باپ کو جنتی کروا لے گی۔ اس لیے قیمتی چیزوں کو قیمتی چیزیں دی جائیں صاحب، ہماری نسل بہت قیمتی ہے۔ دنیا کی کسی موبائل کی اوقات نہیں کہ ہمارے بچوں کے جوتوں کی بھی برابری کر سکے، اس لیے موبائل کے چکر میں ہم ان قیمتی شہزادوں کی زندگی کو نہ لوٹیں، ان کو برباد نہ کریں، کیونکہ بے وقت آنکھوں میں چشمہ لگ جانا، گیم کے چکر میں اسپتالوں میں پاگل بچوں کا پہنچنا، دماغی سنتولن کھو دینا، یہ ظلم کس نے کیا؟ ان ننھی
इन नन्हे परिंदों के साथ इनकी कोई खता नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर वाकई इस्लामी कानून होता तो माँ बाप को फांसी की सजा दी जाती, जिन्होंने एक बच्चे का कल्चर बर्बाद कर दिया, एक बच्चे का फ्यूचर लूट लिया, एक बच्चे के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया, तुमने उसे पागल कर दिया एक जो है जहरीली चीज दे करके। याद रखो ये चीजें ऐसी है कि इनमें 99% बुराइयां रखी गई हैं, 1% सिर्फ फायदा रखा गया है। तो जब तक के बच्चों की शादी ना हो जाए उस वक्त तक तो घर में बेटा हो या बेटी हो बैंड कर दो कि मल्टी मीडिया सेट। अगर तुम वाकई मुझे बाप मानते हो या मुझे माँ कहते हो तो तुम्हें ये चीज हम नहीं देंगे। कुछ भी करो, कितना भी जिद करो, 1 हफ्ता खाना ना खाओ, लेकिन सेठ की वो मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं जीते जी अपने सामने अपने बच्चे की जिंदगी लुटता हुआ नहीं देख सकता, बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए भाई आज इतना खराब माहौल हो गया है। ये तो स्टेज फिर भी पाक है, बहुत पाक, अरे बहुत वाकई बहुत खतरनाक पाक है, एकदम पाक। हम लोग जाते हैं रोजाना, स्टेज काम है अल्हम्दुलिल्लाह, जाते हैं कहूँ कहूँ ऐसा मिला था मौलाना सुभान अल्लाह ने कहा था ये किनारे से सब कुछ चला। हाँ स्टेजवा पहियाऊ खर खर मार घसीटे हैं, स्लिप किया है, और जो है वो कैमरा ऑन करके दुआ करिए आज रात में यहाँ प्रोग्राम में हूँ। आज जिब्रील अमीन जन्नत की सर्टिफिकेट हमें बांटने वाले हैं। आप लोग सब लोग मिलके दुआ कीजिए, जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद ही पर जो है बस आधे घंटे में इंतकाल होने वाला है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये बर्बादी चली। पूरे मिंबर पे हजरत हमने देखा, दसियों उलमा ऐसे लगे हुए स्क्रीनों पर, ना उन्हें मिंबर रसूल की फिक्र है, ना उसकी इज्जत की फिक्र है, ना उसके तहरीम की फिक्र है, ऐसे लगे हुए। हमने देखा 2-4-10 लोग बैठे ऑफिस में या घर में या बरामदे में। पहले ये था बैठ करके और बताइए सुनाइए भाई क्या कर रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है, बच्चों के लिए क्या सोचा है, वो दुकान जो डाला था उसके लिए क्या मशवरा चल रहा है, तिजारत के बारे में क्या हुआ, और सुना था उनकी तबीयत दादी की खराब से क्या हुआ, इलाज हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी खैरियतें पूछी जाती थी। लाओ चाय लेकर आओ, हाँ अरे वो पान देखो जो है देख लो, हाँ भाई कोई, ये सारा सब एक दूसरे की खैरियत पूछते थे। आज 10 लोग बरामदम बैठे एक किनारे से, सब खामोश थे। अचानक होश आया आधे घंटे के बाद एक को, पीजिए भाई चाय ठंडी हो गई कितनी देर से, पीजिए खान साहब लीजिए, शर्मा जी। हमने कहा गए मेहमान, ये मेजबान है जो कह रहा है चाय पीजिए, ये मेजबान है। लुंगी ये चढ़ाए, दोनों गांठ खोले और सिगरेट चढ़ाए और जो है ले लीजिए तो ये उल्टी हरकत है। घर की आबरू लूट ली, दरवाजे की इज्जत लूट ली, मेहमान नवाजी की इज्जत लूट ली, सारा सब कुछ रिश्ते नाते सब ताक पर। अब जब तुम सामने वाले की खैरियत नहीं पूछ पा रहे हो तो उसके घर वालों की कौन पूछेगा? कौन बीमार, कौन अस्पताल गया, उनकी कौन पूछेगा रातों दिन? क्योंकि ये अभी एक माहिर डॉक्टर जावेद अहमद साहब, आप सर्च कर सकते हैं, मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तहकीक के साथ कसम खा के बता सकता हूँ, सिगरेट छोड़ना आसान है, शराब छोड़ना आसान है, जुआ छोड़ना आसान है, लेकिन मोबाइल की लत, स्क्रीन की लग जाए तो उसे छोड़ना आसान नहीं है। ये सिगरेट तो जल्दी से छूटती है लेकिन स्क्रीन छूटने का नाम नहीं लेती, क्योंकि ये सिगरेट से ज्यादा हानिकारक है। अब उन्हें भाई जब बच्चों को आपने उसमें फंसा दिया तो अब उन्हें दुआए कुनूत याद करने का मौका कहाँ मिला? माँ बाप की इज्जत, तकरीम, खिदमत करने का मौका क्या मिला? अरे जनाजा रखा है, सगे बेटा बैठा है, वो नहीं बाप वही है, लुढ़के हैं, खत्म हो गए हैं। जनाजा लपेटा रखा है,
वो नहीं, सगा बेटा हजरत जूता पहने कुर्सी लगाए बैठा है और मोबाइल पे दोस्तों को टैग कर रहा है, देखो गुस्ल के लिए पानी 4 बाल्टी डाल दो, तैयार हो जाए तो बता देना, मौलाना से ऐलान कर दे 1:30 बजे जनाजा। हाँ, सगा बेटा न नहलाने के लिए राजी है, न जनाजा लेकर चलने के लिए राजी है। एक बेटा तो नहावे ना की, सगी माँ खत्म हो गई, इंतकाल हो गया और वो दूर बैठा था, जनाजे में नहीं पहुंचा, कहा सिर्फ मट्टी दे देंगे, तो कहा कि है भाई तुम्हारी अम्मा जनाजा है, तुम काहे नहीं दूर बैठे हो, क्या हुआ मामला? तो कहा वो अम्बो ठंडी मर गई तब क्या लगा? हाँ, ठंडी ज्यादा थी, कोहरा गिर रहा था, नहाया ही नहीं, सगी माँ के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी। हाँ, ये बिल्कुल एकदम जीता जाता वाकया, मैं गांव का नाम भी बता देता अगर डर ना होता तो। हाँ मौलाना, सही सलामत लखनऊ जाए। हाँ बिल्कुल हकीकत का वाकया है, सगे बेटे ने सगी माँ का जनाजा नहीं पढ़ा। मैंने कहा जब खेत में बबूल बोओगे तो साहब फिर तुम्हें गुलाब काटने का मौका कहाँ से मिले? इन औलादों को बचपन से तुम दीन का पानी दे करके सींच दो, कसम बा खुदा ऐसे ये हुनरमंद होंगे ना कि तुम्हें कंधे पर बिठाकर तवाफे काबा ना करवा दिया तो मौलाना नाम बदल देता। हाँ, जितनी कोशिशें तुम दुनिया देने के लिए अपनी औलादों के लिए दौड़ लगाते हो, अगर उतनी लगन और कोशिश अपनी औलादों को दीन देने के लिए लगा दो तो सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, बेटा वली भी हो सकता है। हाँ, बेटा वली भी हो सकता है। जितनी मेहनतें तुम सुबह 6 बजे उठ करके नहला धुला कर सुरमा काजर तेल लगा करके टाई बेल्ट शूज मूड क्या कहते हैं लंच बॉक्स पानी बॉक्स बॉटल बैग दुनिया भर का सब सिस्टम तैयार करके मोटरसाइकिल टंकी बिठा करके जा करके स्कूल के गेट पे छोड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि छूटेगा का 11:30 बजे, 15 मिनट पहले खड़े हैं, निकलो तो बैठाई तो लेके जाए। जो अम्मा जिंदगी में फजर के नमाज ना पढ़ी वो 6 बजे उठे पराठा बेल रही। अगर अब्बा गायब है कहीं चले गए तो वो नहीं बस्ता टांगे स्कूल लिए चली जा रही है। इतनी मेहनत। और जब कुरान पढ़ाने की बात आई तो उस पॉलीथीन में कायदा बगदादी भेजा गया जिसमें कभी सब्जियों का जनाजा निकला था। हाँ, लफ्ज इस्तेमाल। हाँ, उस पॉलीथीन में कायदा बगदादी रखकर भेजा गया जिसमें कभी सब्जियों का जनाजा निकला था। मक्खियों का गोल घर से नारा लगाते हुए भनभनाहट की इस्तकबाल करते हुए मदरसे तक छोड़ कर आता। हाँ, दोनों नाक से कलकत्ता की रबड़ी निकल रही है, पूरे कपड़ा फटा ले जाके ऐसे पटक देता है, मौलाना संभारो कचवाए है 2 घंटा यही रही तो ज्यादा ठीक है। हाँ, अब मौलाना संभाले का 2 घंटा खिलाओ। ये साहब दीन के लिए लगन है और वो थी दुनिया के लिए लगन। इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है, अब यहाँ तो फ्री है मामला, ज़कात फितरे का मामला है और वहाँ 4000 मंथली देने के लिए राजी है। हाँ, 4000 मंथली देने के लिए राजी है, ट्यूशन फीस देने के लिए राजी है, ओवर टाइम देने के लिए राजी है, एग्जाम फीस देने के लिए राजी है, बिल्डिंग के मेंटेनेंस की फीस देने के लिए राजी है, कंप्यूटर का अलग से देने के लिए राजी है, ड्रेस का अलग से देने के लिए राजी है, कोई भी फंक्शन हो उसका अलग से खर्च करने के लिए राजी है। कुल टोटल अगर लगाया जाए साहब तो लाखों रुपए साल में चुपचाप जाकर सर बाबू भाई ले लीजिए, ये रसीद है, ये चेक है, ऐसे लजाजत के साथ 1.5 लाख रुपए दे के आता है। और यहाँ मौलाना कितने काटे हो दिखाओ। कहा करे 51 काट दिया, 21 कहना सुनना पाओ तो भरे लोग की आदत खराब है। एक हाजी साहब मस्जिद में बैठे थे, डब्बा सामने से घूमा तो जुम्मन दिन तो सखावत कौम मुस्लिम को देखे लायक होता है। सारी सखावतें उसी दिन जो है हजे बीमारी पर होती है। तो डब्बा सामने से निकला, हाजी साहब ने बहुत हिसाब से निकाला, क्योंकि आदमी मस्जिद में जेब से हाथ उस वक्त निकालता है जब यकीन हो जाता है कि कितना फंसा है। डब्बे में 5 का सिक्का उठा करके पुट से डाल दिया, खोलने से बोला, पूरी मस्जिद में झंकार मच गई, नेकी हो।
हाजी साहब के सखावत की आवाज है, खान जैसे बोला, डब्बा खटपट खटपट बोला था। तो खटपट खटपट अगर बोल दिए तो जान लो कि बैलेंस आइबे नहीं किया, कहा से बड़वार नोट उतना ये नहीं कि करवा। इतने में एक नौजवान पीछे बैठा था, उसने 2000 की नोट निकाल के दी। हाजी साहब 5 की सिक्का डाल दिए, पीछे से नौजवान ने 2000 की नोट निकाल के दी और कहा हाजी साहब ये लीजिए। तो हाजी साहब ने उसे देखा, पीछे मुड़, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद अल्लाह अकबर अल्लाह ताला तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम 3-4 कमरा अता फरमाए। तो ये डिब्बे में हाजी साहब ने 2000 का नोट डाल दिया, डिब्बे में 2000 का नोट डाल दिया। तब पीछे से नौजवान बोला, हाजी साहब संभाल के पैसा रखा करो, गिर जाता है। 5 का सिक्का निकाल रहे थे तो 2000 हाजी ही का गिरा था जो डिब्बे में डलवा दिया गया। तो ये सखावतें होती है दीन के ताल्लुक से। तो साहब जितने दर्द के साथ हम दुनिया अपनी औलादों को देते हैं, उतने दर्द के साथ अगर अपनी नस्लों को दीन अता कर दें तो सिर्फ हाफिज नहीं, वो साहब आलिम फाजिल मुहद्दिस मुफक्किर सब बनेंगे। क्योंकि उतने आज जो हमारे पास दीन का उजाला मौजूद है ना, हमारे असलाफ बुजुर्गों का, भाई नारा आला हजरत का क्यों लगता है, ताजुश शरिया का क्यों लगता है, इमाम आजम अबू हनीफा का क्यों लगता है, इमाम मालिक, इमाम अबू यूसुफ, इमाम अहमद बिन हम्बल, हजरत इमाम शाफई का नारा क्यों लगता है, आखिर इनके नारे क्यों लगते हैं, ताजदार करबला इमाम हुसैन का नारा क्यों लगता है? भाई कुछ तो बात है ना। तो माँ बाप ने बहुत दर्द के साथ इन मुकद्दस हस्तियों को दीन अता कर दिया। वो दर्द के साथ दीन अता करने का मामला था साहब कि दर्द अगर अबू सालेह बन जाए, एक जुमला हजरत आज के स्टेज से, दर्द अगर अबू सालेह बन जाए और तकवा अगर हया की चादर के तौर पर उम्मुल खैर के वजूद पर आ जाए, उम्मुल खैर के वजूद पर आ जाए, तो जब इतने दो दर्दमंद मिलते हैं तो बीच गोद से गुलाब अब्दुल कादिर जीलानी का खिलता गए। फिर वो महक होती है साहब, वो खुशबुएं होती गए कि सिर्फ अबू साले का आंगन नहीं, सिर्फ जीलान की दरो दीवार नहीं, बल्कि पूरी उम्मत गौसे आदम के साए में आराम करती गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि फिर बगदाद के मिंबर से गौसे आदम का ऐलान हो कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के मर नहीं सकता, मेरा कोई मुरीद दुनिया के किसी लाश कोने में क्यों ना हो, मैं इधर हूँ, सत्र खुल जाए तो छुपा देता हूँ, कोई भी सूरज और चाँद बगैर अब्दुल कादिर के हुजूर सलामी पेश किए हुए तुलू नहीं होते। दर्द के साथ अगर हमने अपनी नस्लों को दीन दिया होता तो दुनिया में मकतब में मदरसों में पढ़ाना तो बड़ी बात है। अगर तुम वाकई दर्दमंद होते तो मौला तेरी नस्लों को कोख में ही 14 पारों का हाफिज बना देता, 14 पारों का हाफिज माँ के कोख में ही बना देता, उसके शिकम में ही बना देता। क्योंकि जब दीन दर्द के साथ अता किया जाता है तो फिर मौला उसे ऐसे भर भर के अता करता है कि साहब झोलियां तंग पड़ जाती हैं, उनकी अताएं कम नहीं होती हैं, खैरात कम नहीं होती है। इसलिए परवरदिगार आलम हम तमामी को अपनी नस्लों को दीन देने की तौफीक अता फरमाए, उलमाए किराम के इल्म अमल में मौला बरकतें अता फरमाए। हाफिज कुरान को मौला दुनिया में भी कुरान का साथी बनाए, कब्र में भी कुरान का साथी बनाए, हश्र में भी कुरान का साथी बनाए। हाँ मौला रहम फरमा, करम फरमा, हम तमानी की ज़बानों पर हक जारी फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।